بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جو کل ہوا مریم نواز اور نون لیگ کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ اب کوئی بات پیچھے چھپی تو رہی نہیں کہ ان لوگوں کی بدماشیوں کو آپ دیکھیں، اور یہ اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان ان کے باپ کا گھر ہے، اور یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو کل ہوا۔ اینی ہو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن پتہ نہیں خان صاحب اس پہ کیا ری ایکشن کرتے ہیں، حکومت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اب حکومت نے اپنا صحیح ایکشن نہ لیا، یعنی حکومت نے جو اپنی حکومت کی ایک رٹ ہوتی ہے اس کو قائم نہ کیا، تو اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں تو اس ملک کی فکر ہے، ہم اللہ کے بعد اس جو نعمت کو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنی رحمت سے، ہم اس نعمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہماری کسی حکومت یا کسی اپوزیشن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، ہم صحافی لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کہہ دینا۔ ہماری ڈیوٹی میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے وہ بھی کہا جائے اور جو غلط ہے اس کی بھی نشاندہی کی جائے۔ تو دیکھیں، اب جو کل ہوا اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں سب کو قرار واقعہ سزا دی جائے اور بلا امتیاز سب کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان پر جو بھی دفعات لگتی ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کی دفعہ آتی ہے، اور بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ اس مسئلے میں بھرپور تعاون کریں گے، اور جو لاہور ہائی کورٹ جو بلیک میل ہو رہا ہے ان نون لیگ کے ہاتھوں سے، ان کو بھی ہدایت کریں گے کہ وہ جو سہولتیں دیتے آئے ہیں، جو سہولت کار ان کے بنے ہوئے تھے، نون والوں کے جو گھروں پہ جا کے ضمانتیں دیتے تھے، تو امید کرتے ہیں کہ جسٹس گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں یہ سہولتیں جو ہیں یہ ہائی کورٹ لاہور نہیں دے گا۔ دیکھیں، اس دن بہ دن آپ دیکھتے جائیں نا کہ مسجد وزیر خان میں ڈانس، اور یہ اس قسم کی حرکتیں آپ دیکھتے جائیں کہ لاہور میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں جو ہر قسم کے فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب ان کی بدماشیاں دیکھیں، وہ جو وہاں پہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، جو بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، پانی ہوتا ہے تو بارش آتی ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے چیخ رہا ہے۔ ان لوگوں کی عقلیں دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ہم کیسے لوگوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ کل ان کے ساتھ نکلے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ خان صاحب، آپ بڑے حوصلے والے بندے ہیں اور بڑے پکے اعصاب کے مالک ہیں، لیکن یہاں پہ حوصلہ کریں گے اور پکے اعصاب کی بات کریں گے تو آپ کی رٹ قائم نہیں ہوگی، اور اگر رٹ قائم نہیں ہوگی تو پھر آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر حکومتوں کی رٹ نہیں ہوتی وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے جو کل ہوئی۔ نیب ایک سرکاری ادارہ ہے، گو ہمیں انتہا سے زیادہ اختلافات ہیں نیب کے ساتھ۔ نیب کی جتنی حرکتیں، جتنے ڈرامے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال نیب ایک پاکستان کا حکومتی ادارہ ہے، اس کی طرف ایک چھوٹی سی کنکری پھینکنا بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اتنی بڑی بدماشی کو اگر آپ لوگ نہ روک پائے تو یہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک میں آپ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے خان صاحب اب وقت ہے
इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और इन लोगों को करार वाक़या सज़ा दी जाए। बिला इम्तियाज़ इस रैली में जितने भी लोग शामिल थे और जैसा जैसा उन्होंने एक्ट किया, उस एक्ट के मुताबिक उनके ऊपर दफ़ात लगाई जाए। जिन लोगों ने हलड़ गुलड़ किया है, दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक खुला जंग है, यानी अल्लाह ने जंग है खुला ये हुकूमत के ख़िलाफ़। और अगर इसमें हुकूमत अपनी रेड कैम न कर सकी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये खान साहब, आप कहते तो हैं कि आपने NRO नहीं दिया, लेकिन दिया भी है। अगर ना दिया होता तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं आते। ये जो बाहर गए, आपकी मर्ज़ी से गए, ये सारे काम तो हुए हैं। और ये जो यहाँ बैठी हुई है, ये आपकी मर्ज़ी से बाहर बैठी हुई है, इसको भी नहीं बैठना चाहिए था। तो ये कुछ कोर्टों की मेहरबानियाँ हैं, कुछ आपकी कबीना की मेहरबानियाँ हैं, कुछ आपके जो मशीर हैं उनकी मेहरबानियाँ हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी मेहरबानी जो आपके वसीम प्लस हैं, उस्मान बुज़दार साहब, उनकी हैं। अब वो कैसे निकलते हैं और उनकी क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, आप देखते जाइएगा आगे आगे। तो इसलिए ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होती है किसी भी हुकूमत के लिए। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक हुकूमतों ने अपनी रेड कैम करनी होती है। तो इसलिए ये चीज़ें देखें, अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो जो इनके असली हथकंडे थे, देखें कैसे सामने आ रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि हम 35 साल से इन लोगों के हाथों में यरगमाल बने हुए थे। यानी इन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, या आप अंदाज़ा कर लें। और यही वजह कि उन्होंने कुछ लोगों को रिश्वत दे के चुप कराया। कुछ लोगों की उनके पास वीडियोस हैं, वो तभी कहते हैं कि हमारे पास और जजेस की भी वीडियो हैं। और मुझे कोई डाउट तो नहीं लगता कि जो लाहौर के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनमें से पता नहीं कितने लोगों की उनके पास वीडियोस हैं, जिसके मान पर वो हमेशा कहते हैं कि आएँ जी हमें ज़मानत दें, और वो ज़मानतें उनके घरों में पहुंच जाती हैं। लेकिन इसकी बार इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जजेस अपनी हिम्मत करेंगे और हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत की रेड को कायम करने में एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। बाकी जो पुलिस है, जो दूसरे हैं, असल में तो देखा जाए तो इनके लोग जो हैं, ये जो माफियाज के लोग हैं, वो हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। देखें ना, इसमें भी हैं। मैं रात राजा बशारत साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। वो तो ज़ाहिर हुकूमती बंदे होते हैं, तो हुकूमती खामियों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर इतने फरिश्ते हमारी पुलिस वाले हो जाएं तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में कोई जुर्म ही नहीं होगा। राजा साहब, आप भी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और कैसी बात करते हैं। यही सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है हमारे सियासतदानों की, जब वो बिला वजह झूठ पे पर्दा डालने के लिए और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो राजा साहब, इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। ये अगर ये ऐसा हो जाए तो हम समझेंगे कि पूरी दुनिया पर हम काबज़ हो गए, अगर पाकिस्तान में पुलिस ठीक हो जाए। सो इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल लिया करें, मेरा ख्याल है, अगर ज़रूरी बोलना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करें कि ये सारे फरिश्ते थे जो ड्यूटी पर मअमूर थे। नहीं, इनके लोग, इस माफियाज के लोग हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमा वक्त वो मुतहर्रक रहते हैं। हुकूमत सोच नहीं सकती जहाँ पर वो एक्ट करते हैं जाके। ये पिछले दिनों जो शहबाज शरीफ का हुआ था, अभी टीम जो है वो नैब के दफ्तर से नहीं निकली थी और शहबाज शरीफ को इतला हो गई थी कि जी हम आ रहे हैं, आप थोड़ा साइड पे हो जाए। तो इसलिए वो सब चीज़ें ठीक हैं। हमें लाखों इख्तलाफ हैं नैब के साथ, लेकिन बहरहाल नैब एक हुकूमती अदारा है
اور उस हुकूमती अदारे को इस किस्म का निशाना बनाना दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। इन सब लोगों पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई जाएं। चीफ जस्टिस साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, इस पे आप ज़रूर एक्शन लें। आपने 100 मोटो तो उस मौलवी साहब पर ले लिया था जिस शरीफ आदमी से मुंह से कुछ गालियां निकली थीं, और उस पर तो दहशत गर्दी की जो हैं वो सारी दफ़ात आप लोगों ने लगा दी थी। तो अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करें और इन पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाएं जिन पे बनती हैं। और अगर ये ना लगी तो बिल्कुल मैं अलानिया कहता हूँ कि अगर इस वक्त हुकूमत की रिट कायम ना हुई और इन पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाकर इनको गिरफ्तार ना किया गया तो हुकूमत को हकीकत में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखें, जमात इस्लामी ने 2 दिन पहले जो एक रैली निकाली थी, उस अल्लाह के घर की बेहुरमती के ख़िलाफ़ जो एक गाने वाली ने और एक भांड ने जो तमाशा किया और जो रक्स किया मस्जिद के अंदर, तो उस पे भी मेरा ख्याल है अभी तक कोई इतना अमल नहीं हुआ। किसी भी तरफ हुकूमत की रिट जो है ना वो नज़र नहीं आ रही जिसको होना चाहिए। खान साहब, वक्त है, किसी भी उस शख्स को माफ़ ना करें, भले वो कोई भी हो, आपके साथ हो या आपके अपोजिशन में हो। जो कानून को हाथ में ले उसको निशान इबरत बना के रखें, तभी हुकूमत की रेट कायम होगी। तो इसलिए उस्मान बुज़दार साहब ने गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी थी उस दिन भी, जब जमात इस्लामी के वर्कर्स ने मस्जिद की बेहुरमती करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए रैलियां निकाली थीं। लेकिन हम चुप और खामोशी से नहीं बैठेंगे। अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR ना काटी गई और इनको गिरफ़्तार ना किया गया तो खान साहब एक बहुत बड़ा हंगामा मुल्क में खड़ा हो जाएगा। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इनको, ये जो कल बदमाशियाँ हुई हैं इनको पकड़ो ना पकड़ो, ये तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की मस्जिद की बेहुरमती के मसले में हम खामोश नहीं रहेंगे। हम आपको कह रहे हैं, ये 24 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं ये बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे और इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक अपने हाथों से पहुंचाएंगे। अगर आपकी हुकूमत ने FIR ना काटी तो, और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया गया तो, और उनको गिरफ़्तार ना किया गया तो बहुत बड़ी आपको एक हम इस चीज़ की समझें कि बिशारत देते हैं कि फिर अगर हुकूमत जो है वो अल्लाह के घरों की हुर्मत बरकरार रखने में नाकाम रही तो इंशाअल्लाह ताला हम फ़िदाने इस्लाम जो हैं अपनी जानों के नजराने देकर भी अल्लाह के घरों की हिफाजत करने के लिए रेडी हैं और करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर जो आपसे होगा आप कर लेना, और जो किसी और से हो सकेगा वो भी करके देख ले। तो बेहतर है कि हमें ना आजमाया जाए और हमारे सब्र का पैमाना जो है उसको बार बार ना छलकाया जाए कि वो गिलास से बाहर निकल आए। तो इसलिए मेहरबानी करें, जो लोग जिन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की है, उस्मान बुज़दार साहब से हम कहते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लें जो जमात इस्लामी ने टाइम दिया उसके अंदर अंदर। अगर ना किया तो नतीजे के ज़िम्मेदार आप हैं। हम खान साहब से भी कहते हैं कि अगर मस्जिद की बेहुरमती करने वालों को गिरफ्तार ना किया गया जो टाइम पीरियड आप लोगों को दिया गया है, तो खान साहब आपके ये जो प्लस हैं ये माइनस हो सकते हैं। ये एक बात याद रखिएगा, हम धमकियां नहीं दे रहे, हम हकीकत जो है उसको आश्कार कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई समझौता नहीं होगा। ये अल्लाह की मस्जिद की बेहुरमती हुई है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई समझौता किसी के साथ भी नहीं करेंगे। आप हूँ भले कोई दूसरा भी होता तो। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासर हो
اور جو کل ہوا ایسے بدماشوں کی بدماشیوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو محفوظ رکھے اور حکومت کو یہ ہمت دے، اور ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی اللہ کی ذات اس چیز کی قوت اور ہمت دے کہ ان بدماشوں پر، ان دہشت گردوں پر جو انہوں نے کل دہشت گردی حکومتی ادارے کے خلاف کی ہے، اس پہ ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگا کر ان کو سب کو گرفتار کیا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے، نہ کہ اس مولوی صاحب کو جس بیچارے کے منہ سے جذبات میں آ کے مہنگائی کے مارے لوگوں کے سامنے کوئی 2 گالیاں نکل گئیں تو ان کے اوپر ساری دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی، گالیوں کی دفعہ لگانے کی بجائے۔ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی نگاہ کرم ان بدماشوں کی طرف بھی تھوڑا کریں اور ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگا کر FIR درج کر کے ان سب لوگوں کو بلا امتیاز اور بلا تاخیر گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ اللہ حافظ۔